Assalamu alaikum dear students and viewers, hope you are all fine. In the measures of central tendency, we have discussed arithmetic mean और आप जान गए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलिए आज हम एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ आते हैं। एंड द मेजर इज मीडियन। देखिए, कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज लीजिए आप, कभी कभार कोई ऐसा वैल्यू होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होता है या which occurs most frequently in the series. This is known as central value of the series. For example, अगर 5 फ्रेंड्स हैं और इन 5 फ्रेंड्स में से एक ने 5 मूवीज़ देखी हैं, दूसरे ने 10 देखी हैं, तीसरे ने 15 देखी हैं और चौथे ने 20 मूवीज़ देखी हैं एंड फिफ्थ ने 30 मूवीज़ देखी। अगर इन वैल्यूज़ की तरफ आप देखें, जो 15 है इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड। इट इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज 80 out of 100 customers visiting a shoe shop buy shoes of size 8. सो में से 80 कस्टमर जो जूते खरीदने जाते हैं वो 8 साइज का जूता लेते हैं। इसका मतलब ये है जो 8 साइज है इट ऑकर्स मोस्ट frequently in the series. Then this 8 will be taken as the central value of the series. Though it includes other values as well like 7, 9, 10, etc. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें जो 15 था ये सेंट्रल वैल्यू है एंड इट्स पोजिशनल वैल्यू समवेयर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, हेंस दिस 15 इज कॉल्ड मीडियन। और ये जो 8 था इट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, इट ऑकर्स 80 टाइम्स आउट ऑफ 100, इसे हम मॉडल वैल्यू कहते हैं। जो मीडियन और मॉड हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल एवरेजेस। These are called positional averages because their value is worked out on the basis of their position in the statistical series. These averages indicate their location in the series. Of course, there are other positional averages as well, but these two are the most important. We have the quartiles, we have the partitional value, we have the deciles, we have the percentiles, but median and mod are the most important ones. देखिए, ये जो मीडियन है ये कोई ऐसा वैल्यू होता है विच इज सेंट्रली लोकेटेड। जैसे हमने ये रिंग्स लिए या ओल्स हमारे पास है, जो मिडल वन है इट इज मीडियन because it has 50% concentration above, 50 concentration below. It's a centrally located value of a series such that half of the values or items of the series are above it and half are below it. आप समझ रहे हैं? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वैल्यूज above होते हैं it should be equal to the number of values below it. Mid value जो होगा that's called median, or we can say the median is that value of the series which divides the group into two equal parts, one part comprising of all values greater than the median and the other smaller than the median. यही वजह है कि हम लिखते हैं कि 50% एबो है, 50% बिलो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। बट अगर हम साइज की बात करें तो एबो ग्रेटर वैल्यूज होंगे, बिलो स्मॉलर वैल्यूज होंगे।
स्टैटिस्टिक्स में जो मीडियन है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम. In order to locate the median value, all items of a series are arranged either in the ascending order or in the descending order. उसके बाद in ascending order higher values follow the lower value, और in descending order आप जानते हैं lower values follow the higher values. जो median है, it's located by using this formula. M is equal to size of n plus 1 upon second item. M is the median, n is the number of items in the series. Let's take an example and try to find out. देखिए हमारे पास एक सीरीज है जिसमें 5 आइटम्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एंड 8. अगर हम इंस्पेक्शन करें इस सीरीज का, जो 6 है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, इट्स देयरफॉर मीडियन. अब अगर हम फार्मूला का इस्तेमाल करें, वी विल राइट इट एज m is equal to size of n. What is n? Number of items 1, 2, 3, 4, 5 here. 5 plus 1 upon second item. Now 5 plus 1 is 6 by second item. 2 3s are 6. Therefore inspection से हमें पता चला था कि जो हमारा मीडियन है दैट इज थर्ड आइटम. थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम क्या है हमारा? 6 है. सो साइज ऑफ थर्ड आइटम is 6. Therefore m is equal to 6. This is how we calculate median for an individual series, right? देखिए अब सवाल पैदा होता है, if n of series happens to be an even number, अगर ये even number होगा, that's n plus 1 upon second, ये even होगा, तो उस सूरत में ये जो वैल्यू हमारा होगा ये एक फ्रैक्शन बनेगा. जैसे कि अगर हम ये सीरीज लें 4, 10, 12 एंड 18, इसमें n हमारा 4 है, n हमारा 4 है, तो उस सूरत में क्या होगा? जो हमारा वैल्यू मिलेगा हमें, इट विल बी 2.5 वैल्यू, क्योंकि 4 प्लस 1 बाई 2 विल बी 5/2. 5/2 क्या है? फ्रैक्शन है. इट विल गिव अस 2.5 आइटम. तो ऐसी सूरत में इन सच केसेस मीडियन वैल्यू शुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज ऑफ द सीरीज. उस सूरत में हम ये लेते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू वैल्यूज ऑफ इन द सीरीज. दस वी कैन राइट, ऐसी सूरत में मीडियन विल बी इक्वल टू साइज ऑफ हमारा क्या है 2.5, साइज ऑफ सेकेंड आइटम plus size of third item divided by 2. It will be equal to size of 2.5 item. तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि फिर से अब ध्यान रखिए कि अगर हमारा जो n होगा, नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर है, उस सूरत में हम क्या करते हैं, वी टेक m एज साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम. अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, हमारा जो सेकंड आइटम है इट इज़ 10 प्लस थर्ड आइटम हमारा क्या है, इट इज़ 12, दैट्स 10 प्लस 12/2 विल बी 22/11. तो उस सूरत में हमारा मीडियन 11 होगा फॉर दिस काइंड ऑफ सीरीज. ठीक है ना? तो इस तरह से आप समझ गए कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हमारा वैल्यू नंबर ऑफ आइटम्स इवन होगा तो उस सूरत में हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन. ठीक है ना? इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ इट्स कैलकुलेटेड फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.